નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટીમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, તમે આ પંક્તિઓથી જરૂર પરિચિત હશો। લहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जहाँ जाकर खाली हाथ लौटकर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मित्रों, आ अति प्रचलित अने जाणीता एवा लेखक श्री हरिवंशराय बच्चनजीनी पंक्तिओ छे के जेनी अंदर आपणे एक अडग विश्वास अने साहस छे ए जाळववानी वात करवामां आवी छे। अने कोशिश कर्या वगर छे माणसो हार मानी जाता होय छे, पण अहींया लेखक कहे छे के कोशिश जे करे छे एनी क्यारेय हार थती नथी। आ श्री हरिवंशराय बच्चननी पंक्तिओ छे। त्यार पछी एमनुं बीजुं एक जे काव्य छे अग्निपथ, ए पण अति प्रचलित छे। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तू न रुकेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, तू न थकेगा कभी। कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। यह महान दृश्य है, यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है। माणस जे चाले छे एने ज कवि छे ए महान दृश्य कहे छे कि यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है। अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। आ जे कविनी जे पंक्तिओ छे ए पण आपणी अंदर काम करवानो एक नवो जुस्सो, एक नवो जोश छे, उत्साह छे ए फूंके छे। आ पण कविश्री अने लेखक श्री हरिवंशराय बच्चननी ज पंक्तिओ छे। अने एमनो जे मधुशाला नामनो काव्य संग्रह छे ए तो मित्रों खूब ज प्रचलित थयेलो छे। तो आपणे आजे कवि श्री हरिवंशराय बच्चन एमना जीवनमांथी ने आपणी पासे एक प्रसंग लईने અહીં આવે છે, એટલે એમની જે આત્મકથા છે એમાંથી લીધેલો એક ભાગ છે, જેના વિશે આજે આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે। અને પાઠનું નામ છે મેરી બીમારી શ્યામા ને લી। લગભગ મિત્રો તમે અમિતાભ બચ્ચનનું નામ સાંભળેલું છે। અમિતાભને તો લગભગ આખી દુનિયા ઓળખે જ છે, પણ હરિવંશરાય બચ્ચનનું નામ પણ તમે સાંભળેલું હશે, કારણ કે હરિવંશરાય બચ્ચનના બે પુત્રો, એકનું નામ છે અમિતાભ અને એક પુત્રનું નામ છે અજિતાભ। તો એમાંથી અમિતાભને તો બધા ઓળખે છે, પણ આપણે આજે હરિવંશરાય બચ્ચનના જીવન વિશે થોડીક વાત કરવાની છે। હવે હરિવંશરાય બચ્ચનના ખૂબ જ પોતે નાના હતા ત્યારે એમના લગ્ન થઈ ગયેલા। એમની પત્ની એનું નામ હતું શ્યામા। શ્યામાની ઉંમર પણ ત્યારે ખૂબ નાની હતી, 15 કે 16 વર્ષની ઉંમર, અને હરિવંશરાયજીની ઉંમર 19 વર્ષની, કારણ કે એ સમયગાળો એવો હતો કે ત્યારે છે એ નાની ઉંમરમાં છે એ લગ્ન થઈ જતા હતા। હવે જે લેખક શ્યામા સાથે થોડા દિવસો વિતાવે છે, કારણ કે ત્યારબાદ લેખક એક ગંભીર બીમારીથી ને પીડાય છે। એક ગંભીર બીમારી રોગ લેખકને લાગુ પડે છે, જેનું નામ છે ટીબી, ક્ષય।
ક્ષયની બીમારી તેઓને લાગુ પડે છે. લેખક સ્કૂલની અંદર નોકરી કરતા હોય છે, ટ્યુશન ચલાવતા હોય છે અને સાથે સાથે લખતા પણ હોય છે. કહાનીનું લેખન, કવિતાનું લેખન પણ તેઓ કરતા હોય છે. બરાબર આ જ સમયગાળો એવો હોય છે કે લેખકને એ સમયગાળા દરમિયાન એની પત્નીની સેવાની ખૂબ જ જરૂર પડે છે અને શ્યામા સાચા મન અને હૃદયથી લેખકની સેવા કરે છે. સેવા કરતાં કરતાં એટલે સુધી એ બીમારી છે એ શ્યામાને પણ લાગુ પડી જાય છે અને જ્યારે લેખક એ ઘણા બધા ડૉક્ટર પાસે જાય છે, ઘણા બધા ઉપાયો કરે છે, છતાં પણ બીમારી ઠીક નથી થતી. પછી લેખક એમના પડોશી દ્વારા સાંભળવામાં આવેલું કે આજે ક્ષયની બીમારી છે તો એના માટે છે એ સિઝ્ઝબાથનું વિધાન છે. સિઝ્ઝબાથ એટલે કે ઠંડા પાણીના ટબમાં 2 કલાક છે એ બેસી અને સ્નાન લેવું. તો લેખક એ અપનાવે છે. જે ખાવાની ખોરાકની પદ્ધતિ છે એમાં થોડો ફેરફાર કરે છે અને અંતે લેખક સંપૂર્ણ રીતે ક્ષયથી, ટીબીની બીમારીથીને મુક્ત થાય છે. લેખક જેવા ટીબીની બીમારીમાંથીને મુક્ત થાય છે એવા જ લેખકના પત્ની એટલે કે શ્યામાદેવી એ આ બીમારીથી પીડાવા લાગે છે. લેખક પણ એની બીમારીમાં પોતાની અંતરની મંગલ કામના આપે છે, એની સેવા કરે છે, એની ચાકરી કરે છે, છતાં પણ શ્યામા છે એ બચી શકતી નથી અને નાની વયે જ શ્યામાનું અવસાન થાય છે. લગભગ 1936ની અંદર શ્યામા છે એ આ દુનિયાને અલવિદા કહી અને જતી રહે છે અને આ રીતે લેખકના જે પૂર્વ પત્ની એટલે કે જે પહેલા પત્ની છે જેનું નામ છે શ્યામાદેવી, એમનું અવસાન થાય છે. તો બસ એ જ વાત છે એ આ આત્મકથાની અંદર લેખકે આપણી સામે રજૂ કરેલી છે કે લેખક કઈ રીતે જીવન અને મૃત્યુ વચ્ચે છે એ ઝૂરતા હોય છે. જીવન અને મૃત્યુ વચ્ચેનો જે સંઘર્ષ હોય છે એ સંઘર્ષ અતિ મહત્ત્વનો હોય છે. લેખક બીમાર હોવા છતાં પણ છે એ ક્યારેય કામ પ્રત્યે છે એ આળસ દાખવતા નથી. એવી ઘણી બધી વાત છે એ લેખકે પાઠની અંદર કરેલી છે. તો આપણે પાઠ આગળ જોઈએ. हिंदी साहित्य में हरिवंशराय बच्चन का नाम उनकी एकमात्र कृति से ही अमर हो गया. हालांकि विपुल मात्रा में साहित्य सर्जन किया है. छायावादोत्तर काल के कवियों में बच्चन एक विशिष्ट सर्जक रहे हैं. હવે હિન્દી સાહિત્યની જ્યારે વાત કરવામાં આવે તો એમાં લગભગ છાયાવાદી કવિઓની અંદર હરિવંશરાય બચ્ચનનું નામ ન આવે એવું બને નહીં. પહેલી વાત કરું કે છાયાવાદોત્તર કાળ અને છાયાવાદ એ કોને કહેવામાં આવે છે? તો છાયાવાદ એને કહેવામાં આવે છે કે અમુક સમય પછી 1930 કે 35 પછીનો જે સમયગાળો આવે છે તો એ સમયગાળા દરમિયાન નવા કવિઓ અને નવી કવિયત્રીઓ છે એ લખવાની શરૂઆત કરે છે અને એમાં જે જૂની જે રૂઢિઓ છે, જૂની કવિતાઓ કે જૂની લખાણની એ રીતને છે એ એક બાજુ મૂકી અને એનાથી થોડું ઉપર જઈ અને બધા લખવાની શરૂઆત કરે છે. તો એ સમયગાળો એ આધુનિક કાવ્ય શૈલીનો સમયગાળા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એટલે છાયાવાદનો અર્થ એવો થશે કે આધુનિક કાવ્ય શૈલી કે આધુનિકતાનો સમય, તો એને છાયાવાદ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને અહીંયા હરિવંશરાય बच्चन એ छायावादी कवि तरीके पण ओळखाय छे. इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में तत्पश्चात दिल्ली में सरकारी सेवा, आकाशवाणी और 2-1 अन्य स्थलों पर आपने सेवाएं दी. लेखक इलाहाबाद विश्वविद्यालय એટલે પોતે મૂળ હતા ઇલાહાબાદના. ઇલાહાબાદ વિશ્વવિદ્યાલયથી અંગ્રેજીના પ્રાધ્યાપક તરીકે અને ત્યાર પછી દિલ્હીમાં સરકારી સેવા આપે છે. आकाशवाणी रेडियो साथे जोड़ाયેલા હોય છે. भारत के एक विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति जी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था. અને હરિવંશરાય જીને રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા રાજ્યસભાના સદસ્ય પણ સીધા બનાવવામાં આવે છે. प्रारंभिक नौकरी पायोनियर प्रेस में की थी. શરૂઆતની નોકરી છે એ પ્રેસમાં, પાયોનિયર પ્રેસ કે છાપાની અંદર એમણે करेली थी. मधुशाला के कवि के रूप में
बच्चन जी को इतनी शोहरत मिली कि उनकी मधुशाला का सभा सम्मेलनों, कवि गोष्ठी आदि में होता था। लोग बड़ी संख्या में उमड़ते थे। मधुशाला एकमात्र काव्य संग्रह एवो छे कि जे कविने अमर करी जाय छे। कविओना सम्मेलनो होय, कवि गोष्ठी होय। कवि गोष्ठी एटले के कविओनी सभा होय अने एमां कविओ वच्चेनो जे वार्तालाप छे, गोष्ठी एटले वार्तालाप, के कवि सम्मेलन होय तो एमां पण कविनी मधुशाला छे ए गवाती। केम्ब्रिज यूनिसे जॉन पेट्स नामक कवि के समग्र वाक्मय पर आपने पीएचडी की है। इंग्लैंड केम्ब्रिज यूनिवर्सिटीना जॉन पेट्स नामना जे कवि छे एमना वाक्यो, वाक्मय एटले के एमना जे वाक्यो छे, एमनी जे वाणी छे एना उपर लेखके पीएचडी नो अभ्यास करेलो छे। केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में आपने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अप्रतिम कार्य किया है। आपको कई पुरस्कार जैसे सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण आदि प्राप्त हुए हैं। तीर पर कैसे रुकूं मैं आज, लहरों का निमंत्रण और इस पार प्रिय तुम हो, मधु है उस पार न जाने क्या होगा जैसी काव्य पंक्तियाँ आज भी लोगों के जबान पर हैं। जे कविनी प्रचलित काव्य पंक्तिओ छे, तीर पर कैसे रुकूं के इस पार प्रिय तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा, मधु है। मधु एटले के अहींया मधुना घणा अर्थ थाय छे। मधु एटले शहद एटले के मध थाय, मधु एटले मदिरा थाय, पण अहींया जे मधुशालाना संदर्भमां लेखके लखेलुं छे मधु एटले मदिरा। आ बधी काव्य पंक्तिओ आजे पण लोकोना मुख उपर रमती जोवा मळे छे अने जे काव्य पंक्तिओ मित्रों लोकोने याद रही जाय ए कविनी सफलता छे ए एमां ज देखाती होय छे। આપણે એમ કહેતા હોઈએ છીએ કે કવિની સફળતા અને નિષ્ફળતા શું, લેખકોની સફળતા અને નિષ્ફળતા શું, પણ જે વાચક વર્ગ છે એ એને યાદ રાખી લે છે, એને હૃદયમાં સ્થાન આપે છે, એને એની જે કૃતિઓ છે એને હૃદયમાં ઉતારે છે, એ જ એના માટે સાચી સફળતા હોય છે। મધુશાલા, નિશા નિમંત્રણ, સપ્તરંગીની, मिलन यामिनी, आकुल अंतर और एकांत संगीत नामक इनके सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर बसे रेसे दूर और 10 द्वार से सोपान तक शीर्षक से 4 खंडों में लिखी आपकी आत्मकथा है। मेरी बीमारी श्यामा ने ली आत्मकथा अंश है, जो क्या भूलूं क्या याद करूं में से लिया गया है। आ बधी ज एमनी रचनाओ छे अहींया जे आपवामां आवेली छे। मधुशाला, निशा निमंत्रण, सप्तरंगीनी, मिलन यामिनी, यामिनी एटले रात्रि, आकुल अंतर और एकांत संगीत, आ बधा एमना काव्य संग्रहो छे। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर पछी बसे रेसे दूर, 10 द्वार से सोपान तक। हवे आ 4 खंडमां एमनी आत्मकथा छे ए लखायेली छे अने આપણો જે પાઠ છે मेरी बीमारी श्यामा ने ली, बराबर, ए पण ए आ आत्मकथानो ज एक भाग छे के जे क्या भूलूं क्या याद करूं एमांथी लेवामां आवेलो छे। बच्चन जी की प्रथम पत्नी का नाम श्यामा था, जो सही अर्थ में एक आदर्श जीवन संगिनी थी। श्यामा की बीमारी उसकी खुद की न होकर बच्चन जी की थी, जो सेवा करते करते ले ली गई थी। बच्चन जी का यह मंतव्य श्यामा की पतिभक्ति, कर्तव्यपरायणता और निष्ठा का प्रतीक है। कवि हरिवंश राय बच्चन ज कहे छे के पोतानी सेवा करता करता श्यामाए ए बीमारी छे ए पोताना उपर लई लीधेली हती। ए बीमारी छे ए लेखकने लागू पड़ेली, पण सेवा करता करता श्यामानी अंदर ए बीमारी आवी जाय छे। पण साचा अर्थमां जीवन संगीनी अने एक धर्मपत्नीनो अर्थ जे छे के जे पतिनी सेवा करे, तो एक आदर्श सन्नारी, एक आदर्श जीवन संगीनीना रूपमां श्यामा छे ए अंत समय सुधी लेखकनी सेवा करती रहे छे अने ए बीमारीनो भोग बने छे। प्रस्तुत आत्मकथांश में श्यामा की बीमारी का
दर्दनाक और कारुण्य सभर निरूपण मिलता है, तो दूसरी ओर कवि की भावुकता और संवेदनशीलता का प्रगटीकरण मिलता है। क्या भूलूं क्या याद करूं श्री हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। हिंदी के इस सुप्रसिद्ध कवि ने अपने संस्मरण बड़े ही रोचक ढंग से आलेखित किए हैं। कवि अपने जीवन की घटनाओं के साथ उस युग का चित्र भी दे देता है। प्रस्तुत अंश क्या भूलूं क्या याद करूं से लिया गया है। इसका यह शीर्षक मेरी बीमारी श्यामा ने ली विषय वस्तु का भी निर्देश करता है। तो खूब ज सरस पाठ है। तो आगळ આપણે પાઠ વિશે ચર્ચા કરીએ। मैं अपनी बीमारी को दुलराने वालों में न था। अहींया एक शब्द है दुलराना। दुलरानानो अर्थ थशे प्रेम करना के आवभगत करवी। लेखक कहे छे कि हूँ मारी बीमारी ने लाड प्रेम करूँ एवो न हतो। सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारियों के प्रति प्रायः निर्भय था। लेखक कहे छे कि हूँ साची बात कहूँ तो हूँ मारी जे बीमारीओ छे एना प्रति हूँ लगभग निर्भय हतो। मने कोईपण प्रकारनी बीक हती नहीं। शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी तो है ही। लेखक कहे छे कि कदाच मैं गांधीजीना लेखमां ज क्यांक वाँचेलुं हतुं कि बीमार पड़वुं ए मोटो गुनो छे, अपराध छे। कारण के माणसने जे शरीर ईश्वर द्वारा आपवामां आवे छे ए एकदम स्वस्थ होय छे। तो ए शरीरने स्वस्थ अने निरोगी राखवुं ए माणसनो धर्म छे। ए व्यक्तिए छे ए पोताना शरीर साथे छे ए बेदरकारी न राखवी जोईए। मैं इस तर्क को कुछ और आगे ले गया था। लेखक कहे छे गांधीजी एवुं कहेता कि बीमार थवुं अपराध छे, पण हूँ गांधीजीनुं आ विचारसरणीने आ गांधीजीना तर्कने एनाथी थोड़ुंक आगळ लई गयो। लेखक शुं कहे छे अपराधी को दंड देना चाहिए। लेखक ए बात कहे छे कि बीमार पड़े तो अपराध थयो तो जे अपराधी होय ने एने सजा थवी जोईए, एने दंड मळवो जोईए। मुझे जब कभी छोटी मोटी बीमारी होती, जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर न लेटता और भी अपने से काम लेता। लेखक कहे छे कि ज्यारे मने नानी नानी बीमारी थती, जुकाम एटले के शरदी, ताव, उधरस, माथुं दुखવું, तो एमां हूँ क्यारे पलंग पर छे ए सूतो न हतो कि आराम न करतो, पण मारी जात पासेथीने हूँ वधारे काम कढावतो। मुझे भरे भुट्ट बुखार में अपनी रात की ट्यूशनों पर जाने की याद है। लेखक कहे छे कि मने खूब ज ताव होय, भरे भूट एटले खूब ज वधारे। ज्यारे खूब ज वधारे ताव होय छतां पण रात्रिना ट्यूशन में क्यारेय छोड्या नथी। ट्यूशन में हूँ रात्रे जतो ज ए मने हजी पण याद छे। बुखार की गर्मी और तेजी में तो मैं और जोश से पढ़ा था। लेखक कहे छे कि ज्यारे तावनी गर्मी होय तो तावनी गर्मी में अने वधारे पड़ता तापनी अंदर तापमां मने जोश मळतो, एक जुस्सो आवतो अने वधारे जोशथी हूँ भणावतो। मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है। लेखक एवं कहता कि जे मजूरी करी अने पोतानुं गुजरान चलावे छे तो एने बीमार पड़वानो अधिकार नथी। जो ए बीमार पड़शे तो एनुं घरनुं गुजरान कोण चलावशे। बीमारी अमीरों की हरमजदगी है। लेखक कहे छे कि बीमारी छे ए अमीरोनी हरमजदगी। हरमजदगी एटले हरामीपण। के बीमार पड़वुं ए अमीर लोकोनी एक ए लोकोनुं आळसूपणुं छे। एटले अहींया एना माटे हरमजदगी हरामीपण एवो शब्द लेखक वापरे छे।
गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। गरीब लोग ये छे ए बीमार बीमार करी अने आराम करवो जोईए नहीं। जो ये आराम करशे तो खासे शू। लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता। लेखक ये छे कि ज्यारे हूँ लखवा बेसूँ, लिखना एटले के कोई कहानी लखतो हो कि कोई कविता लखतो होय तो वधारे ताव होय तो मने ए मददरूप थतो, ए मने नवी प्रेरणा पूरी पाड़तो, मने प्रोत्साहन पूरू पाड़तो। तो मित्रों આપણે પેલા ભાગની અંદર પાઠમાં અહીંયા સુધી રાખીએ। આગળ પાઠ છે એ પાર્ટ 2 માં આગળ જોશું।